ન્યૂઝ ગુજરાતના ખાસ કાર્યક્રમ કરંટ અફેર્સમાં હું જયેશ સોની આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ યુવા વયે હાર્ટ એટેકના વધી રહેલા કિસ્સાઓની। જી બિલકુલ, ગુજરાતની અંદર છેલ્લા થોડા સમયમાં ઘણા બધા એવા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે જેમાં યુવા વયે હાર્ટ એટેક આવવાથી યુવાનોના મૃત્યુ થયા છે, જેમાં ક્રિકેટ રમતા રમતા મોત થવાથી લઈને રસ્તે ચાલતા અથવા તો ઘરે આરામ કરતા ઊંઘમાં હાર્ટ એટેક આવી જવાને કારણે મૃત્યુ નોંધાયા છે। તો આજે આપણે આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરીશું। એ પહેલા આપણે જોઈ લઈએ એક વિશેષ અહેવાલ અને ત્યારબાદ આપણે નિષ્ણાંત ડોક્ટર જોડે આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરીશું। ગુજરાતમાં હવે કોરોના કરતા હાર્ટ એટેકનો ભય વધુ છે। ગુજરાતમાંથી છેલ્લા 2 મહિનામાં 22 યુવાનો હાર્ટ એટેક આવવાથી મોત થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે। હીટ સ્ટ્રોકના કારણે મૃત્યુ થાય છે, પછી ડોક્ટરોને ખબર પડી કે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે। હવે સાચું કારણ સામે આવ્યું છે। નિષ્ણાંતોના મતે આ કોરોનાની અસર છે। શારીરિક શ્રમ અને શરીરમાં પ્લેગ ફાટી જવાને કારણે આ પ્રકારની ઘટનાઓ બની રહી છે। ચાલો એ પણ જાણીએ કે પ્લેગ શું છે। કેટલાક સમયથી હૃદયરોગ બદલવાનું કારણ પણ કોરોના છે। નિષ્ણાંતો કહે છે કે આ રોગને કારણે ધમનીઓમાં બ્લોકેજને બદલે પ્લેગ બનવા લાગે છે, જે વધુ ખતરનાક છે। જે વ્યક્તિના શરીરમાં પ્લેગ હોય છે તે જાણતો નથી કે તેના શરીરમાં પ્લેગ છે। ગુજરાતમાં આ પ્રકારના રોગના યુવાન દર્દીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે। उम्र ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का उसको ऑल्टरनेट पाथ ले लेता है। इसके कारण उनमें कोलेट्रल्स बने हुए होते हैं, मतलब ब्लड सप्लाई जो हार्ट को होती है ब्लड सप्लाई, उसमें ऑल्टरनेटिव पाथवे रहते हैं। तो उसके कारण उनमें जो अटैक आता है वो उतना सीरियस नहीं होता, जो होता भी है लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन यंग पॉपुलेशन में ये कोलेट्रल्स नहीं बनी हुई होती है, उनमें वो प्लैक होता है, सडनली रप्चर होता है तो हार्ट की जो मेन आर्टरी होती है उसी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उसको ब्लॉक करने के बाद में कोलेट्रल होती नहीं है, इसलिए उसमें हार्ट में डैमेज ज़्यादा होता है और काफ़ी सीरियस अटैक होता है। इसीलिए हमने देखा है कि हार्ट अटैक जब जो एल्डरली पॉपुलेशन में हार्ट अटैक आता है वो रिलेटिवली माइल्ड होता है, और जो यंग में आता है वो काफ़ी सीरियस होता है, तो उसमें मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा होती है। ગુજરાતમાં છેલ્લા 2 મહિનાથી નાચતા અને ક્રિકેટ રમતા યુવાનો પડી જવાના કિસ્સાઓ તમે સાંભળ્યા જ હશે। હાર્ટ એટેકના કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે। બાદમાં જાણવા મળ્યું કે મોત હાર્ટ એટેકથી થયું છે। નિષ્ણાંતોના મતે શારીરિક શ્રમ અને શરીરમાં પ્લેગ ફાટવાને કારણે આવી ઘટનાઓ બની રહી છે। નિષ્ણાંતોએ આ વિશે જણાવ્યું કે કાળો અને ફેટી પદાર્થ છે જે ધમનીની દિવાલોમાં જમા થઈ જાય છે, જેના કારણે યુવાનોને હાર્ટ એટેક આવે છે। જો ધમનીમાં તકતીનું પ્રમાણ વધે તો થોડી વારમાં 100% સુધી પહોંચી જાય છે। નિષ્ણાંતો એમ પણ કહે છે કે 40 વર્ષથી નીચેના યુવાનોમાં આ સમસ્યા વધી રહી છે, પરંતુ આ સમસ્યા અચાનક નથી આવતી। આ ડાયાબિટીસ, હાઇપરટેન્શન, અસમાન જીવનશૈલીને કારણે છે। આ માટે 30 વર્ષ પછી નિયમિત આરોગ્ય તપાસ કરાવવી જોઈએ, જેથી આવનારા ભય વિશે ચેતવણી આપી શકાય। જો તમને શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારની અનિયમિતતા જણાય તો તરત જ ડોક્ટરને મળો। તો આપણે જોયું કે કઈ રીતે નિષ્ણાંત ડોક્ટરોનું માનવું છે કે આ રીતના જે વધી રહેલા હાર્ટ એટેકના કિસ્સાઓ છે એની પાછળ શું કારણ છે। આપણે ઘણી વખત જોઈએ છીએ કે કેટલાક કિસ્સાઓમાં ક્રિકેટ રમતા રમતા યુવાનોને હાર્ટ એટેક આવી જવાથી એ પડી જાય છે અને ત્યારબાદ હોસ્પિટલ લઈ જતા એમનું મોત થઈ જાય છે। એવી જ રીતે ઘણા કિસ્સાઓમાં આપણે જોયું છે કે રસ્તે ચાલતા જતા હોય અને ચાલતા ચાલતા પડી જવાને કારણે એને તરત જ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ એનું મોત થઈ જાય છે। આવા અસંખ્ય કિસ્સાઓ જોયા છે। ગઈકાલે જ 2 કિસ્સા એક જ સોસાયટીની અંદર સુરત ખાતે બન્યા છે, જેમાં 18 વર્ષની ઉંમરના યુવાનનું પણ મોત થયું છે અને એક 45 વર્ષના યુવાનોનું મોત થયું છે। તો આ પ્રકારના કિસ્સાઓ કેમ વધી રહ્યા છે, એની પાછળ શું કારણ છે અને કઈ રીતની સાવધાની લેવાની જરૂર છે, આ બધી વાતો ઉપર આપણે નિષ્ણાંત ડોક્ટર સાથે આપણે વાત કરીશું।
તો આપણી સાથે હાલ અત્યારે જોડાઈ રહ્યા છે કોમલ જહાંગીર, એમડી ફિઝિશિયન છે, ડોક્ટર, અને એમની સાથે આપણે આ બાબતે વાત કરીશું। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा है कि अक्सर युवा अवस्था में जो लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक से उसकी सडनली मौत हो जाती है, तो ये अचानक बढ़ते हुए इस तरह के किस्से के पीछे क्या आपकी रिसर्च कहती है, क्या आपके जो रिपोर्ट है वो कहती है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इतना मौका दिया इसके लिए। देखिए, जहां तक आपके क्वेश्चन का सवाल है, उसमें बहुत फैक्टर प्ले करते हैं। सबसे पहले तो उनमें जो अपना रहन सहन है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो जी हेलो। जी जी, आ रही है डॉक्टर साहब। ये आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। उसमें सबसे पहला फैक्टर हाँ जी ये है डॉक्टर कि साहब, आप अपना बोलिए। जी जी, आ रही है, हाँ। आप बोलिए आप। हाँ, सबसे जो मोस्ट कॉमन कारण है वो अपना रहन सहन है, अपने उस साथ में कोमोर्बिडिटीज है। और जो अभी जो कोविड के कारण जो इंसिडेंट्स बढ़े हैं, एक फैक्टर ये भी मान सकते हैं अपन की कोविड के बाद में पर्टिकुलरली यंग पॉपुलेशन में ये इंसिडेंट्स बढ़े हैं। और वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो अपने इंडिया के अंदर जो ये इंसिडेंट्स बढ़े हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन की बजाय 10-20 साल पहले हो रहे हैं। जैसे अमेरिका, यूएस, वहाँ पर यूएस या यूके में जो इंसिडेंट्स पहले जो 50-60s में हो रहे थे, वो इंडियन पॉपुलेशन में 40s में हो रहे हैं। इसके पीछे एक तो जेनेटिक्स मेन रोल प्ले कर रही है, और प्लस अपनी जो लाइफस्टाइल जो सडनली चेंज हुई है इन कुछ 10-20 सालों में, वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है। अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक जेनेटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यंग का जहां तक सवाल है, यंग के अंदर क्या होता है कि जो अटैक आता है वो मासिव आता है, मासिव हार्ट अटैक आता है, जिसके कारण उसका सर्वाइवल बहुत कम हो जाता है। जैसे एल्डरली में क्या होता है, जो उम्र जिसमें होता है या उसको कोमोर्बिडिटीज होती है, जो काफी एज होता है, उनमें कोलेटरल्स बन जाते हैं। जो हार्ट की धमनियां होती है उनके अल्टरनेट पाथवे बन जाते हैं। इसके कारण जो मेन आर्टरी ब्लॉक होती है तो उसमें एक अल्टरनेटिव पाथवे रहता है, तो ब्लड सप्लाई थोड़ी बहुत रहती है, उसके कारण इतना मासिव अटैक नहीं आता। जबकि यंग हार्ट के अंदर वो कोलेटरल्स, जो बाईपास वगैरह थोड़ी बहुत जो आर्टरीज होती है, जो धमनियां होती है, वो नहीं बनी हुई होती है। और जो मेन आर्टरी ब्लॉक होने के कारण जो प्लैक रप्चर होता है, जो प्लाक बनता है कोलेस्ट्रॉल का, वो रप्चर होता है, उसके कारण जो एक मासिव हार्ट अटैक आता है। पूरा रक्त जो संचरण है वो पूरा ही स्टॉप हो जाता है सडनली। उसके कारण मासिव हार्ट अटैक के आने के कारण उनमें मोर्टेलिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है। ठीक है जी, मैं कंटिन्यू जी करूं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि युवाओं में, जी बिल्कुल, मैं कंटिन्यू ही कर रहा हूं। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि युवाओं के अंदर ये जो आपने रीजन दिखाया, मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि जैसे लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से या जो मतलब रेगुलरली योगा करते हैं तो इससे हार्ट अटैक की जो शक्यता है, वो संभावनाएं कम हो जाती है। लेकिन हमने देखा है कि कई जगहों पर जिम करते हुए या स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान भी ये किस्से ज्यादा हो रहे हैं। या जो श्रमिक लोग हैं, जिसका मतलब उसका काम है श्रम करना, जिसकी मतलब उसके ऐसे फैक्ट्स भी बड़े नहीं है, फिर भी 18 साल के युवा को कल एक हार्ट अटैक में मौत हो गई। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, तो उसमें मुख्य क्या कारण हो सकता है? 18 साल के अंदर जो ये डिजीज, अगर मान लो कि आप कह रहे हो तो ऐसे होता है, तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन मानी जा सकती है। हाँ जी, में ऐसा है कि 18 साल की, जैसे 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने के कई कारण हैं। उसमें कारण जो एल्डरली पॉपुलेशन होती है उनसे अलग होता है। उनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये समस्या नहीं होती है। 18 साल की उम्र में तो ये बहुत ही कम चांस है, नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है ये रिस्क फैक्टर। बट मेन जो उसमें रिस्क फैक्टर होता है, एक तो जेनेटिक्स रोल प्ले करती है, प्लस जो अपना जो प्लैक बनना शुरू होता है वो इवन इस एज से पहले ही शुरू हो जाता है प्लैक बनना। नॉर्मल पॉपुलेशन में भी जो कोलेस्ट्रॉल के कारण जमा होता है धमनियों में, वो पहले ही शुरू हो जाता है।
अब डिपेंड करता है कि वो रप्चर कब होता है, इस पर डिपेंड करता है। कोई का प्लैक काफी बड़ा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन वो छोटा सा भी प्लैक रप्चर हो गया तो वो टोटली ब्लॉक कर सकता है आर्टरी को। एक ये फैक्टर है। प्लस अभी जैसे 2-3 सालों में ये इंसिडेंट्स बढ़े हैं, तो पर्टिकुलरली कोविड के बाद में इनके इंसिडेंट्स बढ़े हैं, तो एक कोविड भी इसके अंदर एक मेन फैक्टर रोल प्ले कर सकता है कि यंग के अंदर कि उनके जो धमनियों के अंदर की जो परत होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसके कारण या ब्लड ठीक हो जाता है जनरली, वो कई उसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है उसके पीछे। तो ये एक रीजन हो सकता है कि कोविड भी एक मेन रोल प्ले कर रहा है। प्लस अपने कई जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं। अब जैसे आपने बात की कि कोई जिम में वर्कआउट कर रहा है या फिर खेतों में काम कर रहा है, इसके बावजूद भी उसको वो फिजिकली फिट है एकदम, फिर भी उनको हार्ट अटैक की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इनके पीछे एक जेनेटिक फैक्टर और एक कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस होती है, वो अपन को डिटेक्ट नहीं हो पाती। पर्टिकुलर यंग पेशेंट कई बार उनको इग्नोर कर देता है, यंग पर्सन उसको इग्नोर कर सकता है। कई ऐसी इवेंट्स जो बॉडी उसको साइन देती है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है कि मैं तो यंग हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो लोग। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है बेसलाइन। तो अपन जो फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं कि इसको रिड्यूस किया जाए, तो अपन अपनी बॉडी को पहचानो। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ऐसा वर्कआउट करे उससे पहले या जिम ज्वाइन करने से पहले अपने हार्ट की कंडीशन को पहचानो, पर्टिकुलरली आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद में अब उसके बाद में ही आप वर्कआउट करिए, थोड़ा सा अपनी हार्ट की प्रेजेंट कंडीशन, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका बीपी, आपका हार्ट कैसा काम कर रहा है, क्या है आपका ईसीजी में कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं है, या फिर कोई जेनेटिक इश्यूज तो नहीं है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखकर अपने आप को एक बार इस मामले में थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा आप सबको, सब लोगों को मिलकर, तभी ये इंसिडेंट्स कम होने के चांसेस हैं। और वैसे अभी एग्जैक्ट रीजन क्या है 18 साल की उम्र में, उसका रीजन क्या है ये अटैक का, वो अभी तक क्लियर नहीं होता है। ऐसे जब तक अपन को कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कर ले तब तक नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन वो बहुत ही रेयर इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी अगर जैसे 18 साल 26 साल, तो जैसे रिलेटिवली कल भी 1-2 पेशेंट आपने बताया कि वो हुआ है, तो ये एक बहुत ही अपन को एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये चीजें हो रही है और अपने को इसमें कोई ना कोई डेफिनेटिव कारण भी ढूंढना पड़ेगा और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी ही पड़ेगी, खान पीन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद में अपन को क्या रिजल्ट आते हैं वो देखना। और ये केवल 1-2 आदमी से नहीं होगा, ये पूरा अपनी सोसाइटी को वही लेकर चलना पड़ेगा, तभी अपन इससे थोड़ा सा इसको ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस तरह की जो कंडीशन है उसको पूरी तरह से क्योर करने के लिए पूरा मास लेवल पर इसको प्रोजेक्ट करना होगा और इसको लोगों को समझाना पड़ेगा, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है और इसको रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। आपके हिसाब से प्रिकॉशन किस तरह के लेने चाहिए और किस तरह की साइन हो जिससे सावधान हो जाना चाहिए लोगों को और तुरंत ही डॉक्टर के एडवाइस लेनी चाहिए, या जिस तरह के प्रिकॉशन के लिए एडवाइस आप करते हो उस तरह के प्रिकॉशन लेना शुरू करना चाहिए? देखो, इसमें सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई, अपने बॉडी को जानिए, शरीर को जानिए कि अपनी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, अपना ब्लड प्रेशर क्या है, अपना शुगर लेवल क्या है, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, वो सब देखना है और वो ऑप्टिमम लेवल तक ले जाइए उसको, आइदर बाय डाइटरी हैबिट्स एज वेल एज अपना फिजिकल एक्टिविटी से, वो देखना है। प्लस जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन जो फिजिकली फिट होते हैं, जैसे आपने कुछ सेलिब्रिटीज के नाम भी सुने होंगे अभी रिसेंटली इवेंट हुई, तो उनमें एक जेनेटिक्स बहुत ही मेन रोल प्ले की है। कई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जिनमें भी हार्ट अटैक के इवेंट हुआ है, इवन यंगर एज में हुआ है, तो उनमें जेनेटिक्स एक रोल प्ले करती है। दे आर लीन एंड थिन, सब कुछ भी नहीं है उनमें, कोई भी कोलेस्ट्रॉल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो इस कंडीशन में तो अपने शरीर को जानना है कि अपनी फैमिली हिस्ट्री क्या है, अपनी प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, अपनी लाइफस्टाइल क्या है, उसको देखना है। प्लस आफ्टर 30 हमेशा अपने आप को थोड़ा बहुत डॉक्टर के पास जाइए और चेक करवाइए कि हमारे कुछ ऐसा सिम्टम हो, जैसे किसी को चेस्ट पेन हो, घबराहट हो या फिर छाती में भारीपन लगे, ऐसा तुरंत, जैसे इवन लोग इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को कि ये गैस का होगा, ऐसे पेन वगैरह, थोड़ा छोटा मोटा उसको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इससे वार्निंग साइन बहुत ही जबरदस्त, उसमें मासिव कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस होते हैं अगर अपन ने इग्नोर कर दिया है। तो यंग पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा बहुत भी ऐसा लगे तो जस्ट
डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत जाइए और तुरंत उसके बारे में, चाहे कुछ भी नहीं हो, चाहे वो गैस का ही दर्द हो, लेकिन अपने आप को पहले चेकअप करवाइए, ताकि कुछ बाई चांस कुछ हो ऐसा तो अपने उसको सेव किया जा सके। पेशेंट का काफी मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी काफी उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे सिम्टम्स इसमें यंग पेशेंट में सिम्टम्स जनरली इग्नोर कर देते हैं, जैसे ये एपिगैस्ट्रिक मतलब पेट के ऊपर पेट का पेन हो, पेट के ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा पेन हो रहा हो, तो वो जनरली इग्नोर कर देते हैं कि कुछ पेट में गड़बड़ हुआ होगा, खाने पीने में गड़बड़ हुआ होगा ऐसे। तो इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। तो छोटी मोटी इवन जिमिंग के दौरान आपको ऐसा थकान एक्स्ट्रा थकान लगे और कुछ भी चक्कर आए, डिजीनेस वगैरह फील हो, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए। जो भी माइनर से आपको एबनॉर्मल सिम्टम्स लगे तो आपको तुरंत चेक करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से लाइफस्टाइल आप बता रहे थे कि लाइफस्टाइल जैसे लोगों की चेंज हो रही है, खान पान भी चेंज हो रहा है, लोग जंक फूड ज्यादा यूज करते हैं, खास करके जो कामकाजी लोग हैं, जो मतलब बाहर जाके अपना जॉब करती है या बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, तो ऐसे लोग बाहर जंक फूड खा के अपना जो काम है उसमें वापस जुट जाते हैं। जंक फूड कितना इफेक्ट करता है ये जो फैट बढ़ाने में, जो आप बता रहे थे, और इस तरह की जो प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए जंक फूड कितना जिम्मेदार हो सकता है? जी, इसका अभी रिसेंटली जैसे अपन देखें, जैसे सिनेरियो चेंज हुआ है 10-20 सालों में, लोगों में क्रेज बढ़ा है जंक फूड के प्रति, और उसके बाद में ही अपन ने नोटिस किया है कि हार्ट के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं रिसेंटली, इवन यंगर पॉपुलेशन में ही। अपने में हम सब ने ऐसा नोटिस किया है। जंक फूड में क्या होता है कि जंक फूड एक सैचुरेटेड फैट ज्यादा होती है और एम्प्टी कैलोरीज ज्यादा होती है, वो डिपॉजिट हो जाती है बॉडी के अंदर, वो कोई काम की नहीं होती, तो दे इंक्रीजेस द एब्डोमिनल फैट। एब्डोमिनल फैट इंक्रीज होती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है, तो डायबिटीज वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उनसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है शरीर का, और वो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है जो हार्ट की और शरीर की अन्य धमनियों में जमा होने के कारण, अब उसके कारण ही हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, इंसिडेंस ज्यादा होता है। तो इसलिए ये तो मतलब जंक फूड और प्लस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है, और जनरली ये कॉम्बिनेशन ही पाया जाता है, लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है एकदम स्ट्रेस फैक्टर, जंक फूड एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये एक लीथल ट्रायड बन चुका है आजकल हार्ट के लिए। तो एटलीस्ट तो अपन को अगर इन चीजों से बचना है तो हमें इन चीजों से अवॉइड करना ही पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और हेल्दी डाइट की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और एक खास चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे कि यंग एज के अंदर आजकल हाई प्रेशर, लो प्रेशर और शुगर की जो बीमारी है उसकी जो संख्या है वो भी बहुत बढ़ रही है। तो ऐसे लोगों को किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए, खास करके हार्ट अटैक को लेकर के? अभी रिसेंटली मैंने एक डेटा पढ़ा था, उसमें से ऐसा है कि इंडिया के अंदर 3 में से 1 आदमी को ब्लड प्रेशर, अगर अपन चेक करें तो 3 में से 1 आदमी को ब्लड प्रेशर मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक अमाउंट हो जाता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो जाती है। तो इसको सबसे पहला काम है डिटेक्ट करना कि ब्लड प्रेशर और शुगर इवन यंगर पॉपुलेशन में आ रहा है। डायबिटीज, इंडिया इज नाउ ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, सबसे ज्यादा डायबिटिक्स इंडिया के अंदर ही है, और वो डायबिटीज जो फॉरेन में आते थे उस एज में 10 ईयर्स पहले आ रहे हैं। जैसे वो फॉरेन मानो एवरेज 40-50 में आ रहा था, तो वो इंडिया में 30-40 में आ रहा है एज में। तो ये जनरली इंडिया एक तो जेनेटिक फैक्टर काम कर रहा है इसमें, और एक जो लाइफस्टाइल जो चेंज हो रही है वो काम कर रहा है। तो इसलिए अपने को इन दोनों को काफी कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इनका डिटेक्शन जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो जाए, और उसके बाद में उनका जो कंट्रोल हो, ब्लड शुगर और हाइपरटेंशन दोनों, ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल रहे, तो अपन को ये जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हो रही है इसको टैकल करने में काफी कुछ मदद मिल सकती है। अगर अनडिटेक्टेड हाइपरटेंशन काफी लंबे टाइम तक रहेगा तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अनडिटेक्टेड डायबिटीज काफी लंबे टाइम तक रहेगी तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहेगा हार्ट के लिए। तो देन आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज आपको रेगुलर चेकअप करवाना है, और रेगुलर इवन ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर रेगुलर चेक करना ही चाहिए। इवन आजकल मैं तो प्रमोट करता हूँ होम बीपी मॉनिटरिंग के लिए। इवन
जो फैमिली किसी की फैमिली में एक हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो मैं उनको बोलता हूँ आप घर पर अपना इंस्ट्रूमेंट रखिए और खुद का भी चेक करिए और बाकी लोगों का भी करिए। और इंसिडेंटली आप बिलीव नहीं करोगे, इवन जब मैं मेरे हॉस्पिटल में काम करता हूँ वहां पर ही मैंने इवन 25 to 30 ईयर की एज में 3 से 4 बंदे ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ है और अभी वो मेडिकेशन पर है और इनको इसके कारण कॉम्प्लिकेशन भी झेलने पड़े हैं। लकीली वो अब नाउ दे आर सेफ, वेरी गुड। तो इवन इसलिए मॉनिटरिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर बहुत साहब, important। जी जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी से हम एक और बात कर लेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि मेडिटेशन और जल्दी क्योर होना ये काफी फायदेमंद हो सकता है, तो ये योगा और मेडिटेशन जो है वो इन तरह के पेशेंटों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, ये और लोगों को किस तरह की आप एडवाइस देंगे इन चीजों को लेकर के, मेडिटेशन और योगा को लेकर के? देखो, आफ्टर कोविड के बाद में एक और रिस्क फैक्टर है, वो है स्ट्रेस जो बढ़ा है, जिसको अपन कल्प्रिट मान सकते हैं कि हार्ट का जो इवेंट हुई है उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लोगों का स्ट्रेस लेवल काफी बड़ा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए योगा और मेडिटेशन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एकदम 100% कारगर उपाय है। आप स्ट्रेस लेवल को आपको एकदम रिड्यूस करना है तो आप इनको फॉलो कर सकते हो और फिजिकली भी फिट रह सकते हो। इवन योगा से आप फिजिकली फिट रह सकते हो। इवन आप डेली 45 मिनट की वॉक करते हो, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं करनी। इन एनी फॉर्म आप जो एक्टिविटी करना चाहते हो आप करिए, तो उससे आपके फिजिकल जो एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म वगैरह वो अप टू डेट रहेगा और आपका रिस्क फैक्टर डेफिनेटली, आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो कम होगी और शुगर, बीपी ये सब कंट्रोल में रहेंगे और इससे कार्डियक जो रिस्क है वो भी कम होएगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सर, आप डॉक्टर कमल जहांगीर थे हमारे साथ, जो काफी जरूरी एडवाइस हमें दे रहे थे। जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उनके लिए काफी जरूरी टिप्स उन्होंने दी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी खास बातचीत की और लोगों को काफी सारी जो जरूरी बातें हैं वो आपने समझाई है। आपका खूब खूब आभार, और हम फिर से आपका कभी इस तरह की हम प्रोग्राम करेंगे तो आपका संपर्क करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। તો આપણી જોયું કે ડોક્ટર સાહેબ એડવાઇસ આપી રહ્યા હતા કે જે રીતે શુગર, બ્લડ પ્રેશર અને સ્ટ્રેસ લેવલની જે ઘટનાઓ હાલ વધી રહી છે એ જ મુખ્ય કારણ છે અત્યારે હાલ યુવા વયે હાર્ટ એટેક આવવાનો, અને એને ઓછું કરવા માટે યોગ અને મેડિટેશન ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે છે। અને લોકોએ ખાસ કરીને 30 વર્ષની ઉપરના લોકોએ પોતાના બોડીનું રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ, અને સાથે સાથે જે ડોક્ટરે ટિપ્સ આપી છે એ પ્રમાણે પોતાને રેગ્યુલરલી ફિટ રાખવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, અને જે ખાનપાન અને બાકીની જે રહેણી કહેણી આપણી છે એમાં સુધાર લાવવો જોઈએ, ત્યારે જ આપણે આ જે કંઈ પણ ઘટનાઓ બની રહી છે એને રોકી શકીશું। તો આજે આપણા ખાસ કાર્યક્રમમાં આટલું જ। આવતીકાલે નવા વિષય સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો।